नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के गुरुग्राम में और यहां पर ये आर्टिमिस हॉस्पिटल है। यहां पर टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम रखा गया है। जी हाँ, टीबी जिसे पहले बहुत ख़तरनाक बीमारी माना जाता था और आज जो है उससे लड़ते लड़ते भारत इतना सक्षम हो गया है कि आज टीबी को इतना ख़तरनाक नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी टीबी एक ऐसा भयंकर बीमारी है जो एक दूसरे से जो है एक दूसरे में पहुंचता है और इसको एक अभी भी जो है गंभीर बीमारी माना जा रहा है, जिसके चलते भारत सरकार ने इसको 2025 तक जो है जड़ से ख़त्म करने का फैसला लिया है और उसी के चलते पूरे भारतवर्ष में इसकी अवेयरनेस के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के चलते यहाँ इस अस्पताल में हम आए हैं और इस अस्पताल के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन है। तो आइए चलते हैं ऑडिटोरियम में और जानते हैं कि इस टीबी से संबंधित ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है, इसका किस तरह का इलाज है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हरियाणा के सीएमओ हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मिलते हैं और उनके द्वारा अपने चैनल के द्वारा आप तक ये कार्यक्रम पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मेरे साथ मेरे कैमरामैन हैं मिस्टर अब्दुल और सीनियर जर्नलिस्ट हैं मिस्टर संजय जैन। That can be done if we detect all the cases which are prevalent in this city in these 6 months only. Then next 1 year there will be no spread, and then we can treat all them by maybe 6 months or 9 months, and even MDR or XDR cases up to even 12 months, even if we have to go somehow. But everything will be, I think so, we will be able to resolve this issue by next July or August. So why can't be next 15th August 2025 we can be a tuberculosis free Gurugram at least. The tuberculosis department, TB department जिसको हम short में कहते हैं, the team is sitting here. I urge and I ask you people to have such an IEC activities in next 2 or 3 months, so that each and every person they themselves report to us. We should make so much of IEC activities at each and every, what should I say, place or the corner, new and every corner, where they are able to read, or what should I say, hear. So many people, they cannot read. They should be able to, somehow they should be able to know what is tuberculosis and what they are supposed to do. And what you are doing now, house to house, and this launch is in that purpose only. That should be the approach, but not the only approach. I'm sorry, I'm saying it's good for us. It is going to, definitely it is going to benefit in the same way what I'm saying. But again, we may not be able to reach each and every person. Then what? Then the other way is only this thing. Let's have such a strong communication or IEC activities, so that each and every case can come to us or we can reach to them. And in the last one, ultimately same thing is going to happen. It will be eliminated, and not only the vaccination, as maybe it is not the time to tell you the regimen and other things, how we are going to now, even latest program, we are going to avoid testing and etc. So many things are going to happen. To house, and earlier we did in 2 villages, and now we are going to did this active case finding in 4 or 5 villages in Kasan area. And earlier, along with the Artemis Hospital, in this program we detected around 30 cases, pulmonary cases, and we started initiated on treatment earlier, so that we controlled TB, so that patient cannot infect to other persons. And parallelly we have TB preventive treatment, where we are giving
a single medicine for the prevention of the TB, so that the household contacts of the pulmonary cases, they will not have TB in next future. So within 2 years, household contacts of pulmonary TB case can develop TB. So for that, we are from all directions we are doing all work so that we can control TB in Gurugram district and supporting in the elimination of TB in India, all over India. Along with this, we are having a TB adoption program where we are giving nutritional support to the patients. And in this case, Artemis has already given 95 cases of TB patients for this nutritional support. And now further we expect that more and more cases be adopted under the program of Prime Minister TB Mukt Bharat Abhiyan. So that this will be a big tree with fruits that other people will come and see and enjoy and try to be and happy to work with all of you. Thank you so much. Gurugram, and we are at Artemis Hospital. So this is about fight back TB. So we wanted to understand, sir, like Gurgaon, since it's supposed to be big, people are eyeing to come to Gurgaon, and today we are talking about TB. Already the government, we have so many organizations working. So what's the real scene? Means how affected it is, the urban, the slums, which we are talking about. See, the Gurugram scenarios and the geography is very difficult, not only because of the urbanization and the slums, even we have the rural population also, and so many industries are there, and so much of population, though census has not happened, but let me tell you, our population is on papers now, what survey we have done, it's around 35 lakhs, and maybe it's more than that, and we do have a migratory population of around 6 lakhs almost per day, which is going back and coming to Gurgaon, up and down it's happening. So any infectious disease, let me tell you, be in short, any infectious disease, how it is to be controlled? It is to be controlled only by detecting at the earliest, so that it doesn't spread to others. What we did in the COVID, same, we detected each and every cases. And same case is with the tuberculosis. We should not be afraid of detecting the number of cases. We should detect the number of cases or the infected cases as early as possible. Not only we should treat them, we should support them with the nutrition. We should evaluate the family also. We should do certain tests, and we should, now there is a prophylaxis for the family also. The treatment should be given to them, because ultimately if it's a pulmonary tuberculosis cases, the family is going to have a tuberculosis, the family members is going to have tuberculosis within 2 years. It has been reported. So, and now your question is comes here, the where you have asked about the slums and urbanization, because in the slums and in the urbanization where so too much of population is there, they are working or they are staying in a closed area, then the spread is the issue. So we have to curtail or stop this spread of tuberculosis, and it is quite possible and feasible if we stop the spread by detecting them early and by treating them early. So like Dr. Yadav ने जो बोला है कि about giving the monetary support, जो 500 rupees वो बोल रहे हैं, so is that enough? 500 रुपये का See, medicines no, medicines, they are free of cost, they are provided by Totally us. free. Yeah, totally free we are giving. Being a CMO, what I said, that the nutritional support is, it's a support given by only for the nutrition only, the over and above what they are taking. For the protein, usually they are protein deficient, so that is a supplement, it is not the complete nutrition we are giving, it is the additive thing we are giving, and that's the only during the what should I say, treatment period only. After that, the post-treatment. Post treatment, they are that why we are treating them, so that they are not the tuberculosis resistant, they are not MDR cases, not they are not XDR cases, they can be detected early, they can be treated early, and they can again go to their jobs. Wonderful. तो मैं आखिर में आई थिंक हिंदी में बोल दूंगा कि सिंस आर्टेमिस ने ये पहल करी है एंड द CSR इनिशिएटिव अंडर डॉक्टर शालिनी एंड अदर डॉक्टर्स, डॉक्टर यादव, आई थिंक एक पहल हमारे जैसे पोलियो एरेडिकेशन हुआ था, सो दिस इज TB, वी हैव टू फाइट एंड एवरीबडी हैज टू फाइट एवरी लेवल. तो आप लोग के नज़दीक में कोई भी आप
जिसको देखते हैं कि जिनको असर है, लगता है कि तो गाइड टेक हिम टू द नियरेस्ट मेडिकल सेंटर. आर्टेमिस इज वन ऑफ देम, मेडांता जैसे आपने बोला ना, all it's all over India, बिल्कुल. sir. लास्ट जो टीबी का प्रोग्राम हुआ था, जब हमने सभी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया था, और अब आपने जो बात की मैं एक बार दोबारा करूं, और जब मैंने अपना उद्घोषण हिंदी में, अगर आप बात ही कर रहे हैं, तो जब मैंने वो किया था तो उस टाइम भी मैंने आपको बताई थी बात कि जन भागीदारी सबसे ज़रूरी है. जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक ट्यूबरकुलोसिस क्या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है. इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप आगे आएँ और हमारा सहयोग करें. हम आपके साथ हैं और टीबी को हम एलिमिनेट 2025 तक कर सकते हैं. तो आज हम लोग सब शपथ लेते हैं, CMO एंड एवरीबॉडी एट आर्टेमिस, और जो भी हम लोग आए हैं मीडिया एंड पब्लिक, कि वी विल इरेडिकेट टीबी. दैट्स ऑल वी कैन ऑल से राइट नाउ. टीबी हारेगा, देश जीतेगा. सब लोग बोलेंगे सर. या टीबी हारेगा, देश जीतेगा. धन्यवाद सर. थैंक यू. थैंक यू. दोस्तों नमस्कार. टुडे वी आर एट आर्टेमिस हॉस्पिटल, सेक्टर 51, गुरुग्राम. So they have, under the CRSA initiative, they have brought out about fight back TB. जो fight back शब्द है उन्होंने उसमें TB छुपाया है, and it's about India fighting back. It's about Gurgaon, क्योंकि Gurgaon is the latest urban cluster after Bangalore, Pune. Over last 10 years there's a lot of development in Gurgaon. So we have a slum development where people from poor who are working in those offices, they stay there and they get infected by TB. We just heard the CMO, Dr. Yadav, he just left, and now we have two other doctors. Sir, we'd like you to introduce yourself and talk about TB. Sir, your introduction first, sir. मेडिकल फर्टर्निटी से क्या वो चाहते हैं उम्मीद उनको? टीबी एक फैलने वाली बीमारी है जो खांसी के थ्रू फैलती है. इसके अलावा इसको ध्यान देने की बात यह है, अगर किसी को किसी प्रकार की भी खांसी है तो वो जल्द से जल्द जाके अपने किसी भी हेल्थ सेंटर पे जांच करवाए. जांच के टाइम पे आपको सबसे पहले स्पुटम की जांच करानी होती है, बलगम की जांच करवानी होती है. अगर उसमें टीबी अगर आती है तो उसका पूरा इलाज होगा, और जो कि सरकारी अस्पताल के अंदर जांच से लेके और ट्रीटमेंट और देने तक सारा मुफ्त इलाज किया जाता है. इसके अलावा सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये पर मंथ जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक उसको डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आते हैं. इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री निक्षय मित्र योजना के तहत भी हम जो निक्षय मित्र होते हैं उनके थ्रू भी हम उनको पोषण प्रोवाइड करवाते हैं. सर आपका इंट्रोडक्शन देंगे, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि टीबी का जो फर्स्ट डिटेक्शन स्टेज है दैट इज स्पुटम, जो बलगम है, तो अपना इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी. मैं डॉक्टर केशव शर्मा और डिप्टी सिविल सर्जन टीबी, HIV, लेप्रोसी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं सारी, और उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम ऑफिसर हूँ मैं यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का. जैसे कि टीबी के बारे में है कि टीबी का जो अभी गुड़गांव का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 1 लाख की पॉपुलेशन पे 300 केस हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं. प्रिवलेंस जो है 300 केसेज है. लेकिन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि ये 300 केस जो अभी हैं उनको रिड्यूस करके हम ऐसे स्टेज पे लाएं कि वो 40 केस पर लाख पॉपुलेशन से भी नीचे हो जाए. तो दैट इज़ ए एलिमिनेशन. इसके बाद जब एलिमिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद इसका इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा. तो हमारा मकसद ये है कि जितना अर्ली हम डायग्नोज करेंगे पल्मोनरी टीबी, फेफड़े की जो टीबी होती है, उतना जल्दी ही हम टीबी का ट्रीटमेंट करके पेशेंट्स को और उसको सोसाइटी में स्प्रेड होने से हम उसको रोक सकते हैं. तो अभी तक जो कोई भी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हमें टारगेट जो देती है, हम उस टारगेट से भी आगे चल रहे हैं. और अब तक जो हमारा स्टेटस है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा टीबी केसेस हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, और दैट इज़ टारगेट का 112% हम कवर कर चुके हैं. और हो सकता है कि जो हमारा टारगेट है शायद उससे भी ज़्यादा हम केस डिटेक्ट एंड ऑफ द ईयर हम करेंगे. सर जानना, जैसे अपन भारत में वी हैव सो मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो सबसे कम कौन से राज्य में या यूनियन टेरिटरी में टीबी सबसे कम टीबी अरुणाचल प्रदेश और वहाँ पे है. तो उसका क्या कारण होगा? कारण वही है कि वेदर है? नहीं, कंजस्टेड एरिया नहीं है वहाँ पे इतना ज़्यादा, और लोग जो है काफ़ी उसमें अलग अलग दूर दूर रहते हैं, तो इससे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है कम होता है.
इसमें वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये फैलता है, अगर जैसे अभी जो प्रेजेंटेशन में भी बोला गया कि अगर वो एक फैमिली एक रूम में रह रही है 20 बाई 20 या 10 बाई 10, तो और आपस में उनको 2 साल में सीएमओ साहब ने बोला कि वो इन्फेक्शन होगा ही। जितने लोग एक्चुअली एक कमरे में रह रहे हैं, 5 लोग 10 लोग जितने भी रह रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी टीबी डिटेक्ट होगा और वो रेगुलरली एक साथ रह रहे हैं, तो 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप कंटिन्यूसली उसके साथ रह रहे हैं, तो दैट मीन्स के हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हैं आप टीबी पेशेंट के, और उनको भी जो है टीबी होने के चांसेस विद इन 2 ईयर्स होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने अब टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो भी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स है उनको एग्जामिन कर करके ये डिटेक्ट करते हैं कि इनको तो टीबी नहीं है अभी। अगर उनको टीबी नहीं है तो पहले से ही हम एक दवाई साथ साथ देते हैं, 6 महीने के लिए चलती है, जिससे कि नेक्स्ट 2 ईयर में उनको टीबी इन्फेक्शन होने के चांसेस 33% से भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओरली दे रहे हैं मेडिसिन? हाँ, ओरल मेडिसिन है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में। अब जितनी भी तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, चाहे से वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, चाहे से वो ड्रग सेंसिटिव टीबी नॉर्मल टीबी है, सभी में ओरल ट्रीटमेंट है। पहले इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होता था जिसके कारण से वो उनके और अदर प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाता था। इंजेक्शंस अगर कोई डेली लगवाएगा वो पेनफुल भी होता था और कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता था। इसलिए अब टोटली ओरल ट्रीटमेंट पे सभी तरह के ओरल ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। उसका कारण उसके बाद जब से हमने बीडाक्यूलिन बेस्ड ओरल ट्रीटमेंट जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए स्टार्ट किया है, उसमें आउटकम मोर देन 90% है। अगर पेशेंट लगातार हमारे डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से अगर दवाई लेते रहें तो उस आउटकम बहुत ही अच्छा हो चुका है अभी। और वही रिक्वेस्ट मैंने आर्टेमिस हॉस्पिटल को भी किया है कि आप हमारे साथ MOU करें, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सेंटर भी आप यहाँ बनाएं, जैसे कि मेडिसिटी ने ऑलरेडी बना रखा है। और जो सारी मेडिसिन है जो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है, वो प्रोवाइड कराते हैं। MDRKC हम प्रोवाइड कराते हैं और वो पेशेंट वहाँ भी ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट जा सकता है, वहाँ भी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दवाई उसके लिए हम प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर वो पेशेंट की इच्छा करती हो कि वो गवर्नमेंट की मेडिसिन खाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि ये टीबी जो है कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप, जैसे चाइल्ड टीबी होता है क्या बच्चों में? इसमें कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एट बर्थ पे भी टीबी का केसेज हमें डिटेक्ट हुआ था। वो प्राइवेट के थ्रू हुआ था, बट उसका ट्रीटमेंट हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया, और उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज को हो सकता है। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक होती है उसको होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसमें मेल और फीमेल का भी कोई डिफरेंस नहीं है? ऐसा कोई मेल और फीमेल का कोई कोई डिफरेंस नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में हो कि स्टैटिस्टिक्स में महिलाओं ऐसा को देखा ज़्यादा गया है होता कि मेल को ज़्यादा होता है और फीमेल को कंपेरेटिवली कम है। राइट। और सबसे आखिर में मैं अपना जोड़ना चाहूँगा कि जब कोरोना भारत में आया था तो काफ़ी लोगों ने करा था कि आप ड्रिंक करिए, सिगरेट पीजिए, उससे हमारा रोग मुक्त हो जाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट और राइट में दोनों खड़े वो बताना चाहेंगे कि आपको टीबी के लिए पहले अपना जांच करवानी है, और जैसे अगर परिवार में किसी को है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि उनको भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो भारत सरकार के ज़रिए प्रधानमंत्री योजना और वेरियस जो अलग अलग विभिन्न सरकार अलग अलग स्टेट्स में। सर आप कुछ ऐड करना चाहें फाइनली? नंबर 1 तो मैं ये बता देता हूँ कि किसी भी डॉक्टर ने कोरोना के दौरान ये नहीं कहा कि बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए या शराब पीजिए। तो ये आम पब्लिक की अपनी ही धारणा है कि शराब पिएंगे तो कोरोना नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं मरता, बल्कि और नुकसान होता है, लीवर को नुकसान होता है और बहुत सारी डिजीज भी हो सकती हैं। अननेसेसरली अल्कोहल और स्मोकिंग हम हमेशा से कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। सर आपके आखिरी शब्द? ये एक्चुअली ये जो धारणा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही इम्यूनिटी कम होगी तो टीबी के चांसेस होने के सबसे ज़्यादा हैं। और अगर कोई भी अल्कोहल ले रहा है या कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, बल्कि और चांसेस हैं कि वो बीमारी और होगी। और उसके साथ साथ हम HIV टेस्टिंग भी करवाते हैं और ब्लड शुगर भी टेस्ट कराते हैं। वो भी एक ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ये टीबी के बीमारी होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं। और अगर किसी को HIV है तो 10 टाइम्स ज़्यादा है टीबी होने के। बल्कि ये जो धारणा जिसने भी कुछ बताई होगी
वो उस तरह की है नहीं धारणा। धारणा ये है नहीं सर, वो कि इसलिए आप आपको आपके सामने clear करा है कि- आप अपना हेल्दी डाइट लें और अपनी इन सारी चीज़ों से स्मोकिंग का जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी मेरे पास ही है, और हम जो भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हैं उनके चालान काटते हैं हम, कि इस तरह की एक्टिविटी एक कॉमन उसमें क्राउडेड एरिया में या कोई पब्लिक प्लेस पे नहीं होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों से बचना है। और कोई भी एसोसिएटेड कोई मॉर्बिडिटी आपके है, मतलब डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है, तो सपोर्टिव उसका टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट साथ साथ लें, जिससे कि टीबी जल्द से जल्द क्योर हो सके। सो फ्रेंड्स, आखिर में मैं बस ऐड करना चाहूँगा कि आर्टेमिस की ये पहल है, GLRE के साथ है, ये एक CSR इनिशिएटिव है। तो अगर आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ना चाहें और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी करना चाहें, क्योंकि ये पहल लोग चंदा दान करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो अब जो समय आ गया भारत में कि हम लोग मेडिसिन का दान करें और अपने साथ अपने फेलोज जो अपने सोसाइटी के लोग हैं उनको गाइड करें और उनको हेल्प करें, तो और न्यूट्रिशनल सपोर्ट, क्योंकि ये पोषण टीबी मुक्त भारत अभियान है, जिसके तहत आप निक्षय पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट करके उनको आप सपोर्ट दे करके दान कर सकते हैं। तो हम लोग जो हैं आपके लिए ये रिपोर्ट स्पेशल, संजय अग्रवाल, मेरे साथ मेरे जो मीडिया के फ्रेंड्स आए हुए हैं दिल्ली से, रूप सिंह हैं, अब्दुल कलाम हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आप रिपोर्ट पढ़ें और अभी हम आपको जो अंदरूनी सेशंस की भी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। धन्यवाद। Hospital, we have Shalini Kanwarji, she's heading the CSR. We have, what's your name, ma'am? Sujata. So she's also part of the CSR team, and we have Mr. George, the GLRE. Yeah. So this is today, I think, as Dr. Keshav was saying, that Artemis is they're looking for a MOU. But you people with GLRE have already partnered. Yes. So anything you want to add in the last? How was your event? The event has gone off very well. Thank you very much for everybody. We are very much into the elimination of TB, and with GLRE, we are very excited and looking forward to seeing how we can eliminate it as fast as possible. Of course, we've been given 2025 as the target. That is what we're all hoping for, and that's all I have to say. Great. For now. Thank So, you. Mr. George, sir, what's your finding? Yeah, this is the third phase, and we are very happy to associate with Artemis Hospital. In the first phase, it was 20,000 population, and this time we moved to 78,000 population. And the first phase we covered 3 villages, and this time it's 4 villages, so total to 7 villages. And Dr. Keshav was talking about an MOU. That MOU is for drug-resistant TB patients, where the district program wanted the Artemis to support for this particular intervention. This is beyond the scope of this third phase of the project, but I always wish Artemis and the district TB program to enter into that agreement, where GLRA also can contribute home-based care and counseling support. Thank you so much. So you see that GLRA, they were fine, like 1958, they've been working in India tirelessly. And Sujata will give us the final byline about TB, Hariga. See, again, as a CSR has taken this responsibility of eliminating. So being a donor agency, we can only do that. We can support the implementing partners for this great mission of Prime Minister's TB Mukt Bharat. So we came with this, you see the tagline, apart from TB Harega Desh Jeetega, we have this, it's a fight back campaign. So this campaign is going as a mission campaign. Wonderful. Thank you. We have now Dr. Jaggi with us. Yes. Ma'am, you want to say something about this event today? So I think it's a great event. This is thanks to the inspiring efforts of Madam Shalini Kanwarjan and also Sujata. They are working as a team. So this is our CSIR initiative from Artemis, and from the Artemis Hospital, from the diagnostic side, we are looking after the diagnostic aspect of tuberculosis. And as the Prime Minister's initiative and as the Ministry of Health and Family Welfare has initiated this TB elimination program, we are working on the molecular testing of tuberculosis and also trying to find out the MDR, the multi-drug resistant, and the extensively drug resistant XDR tubercle bacilli, so that we are able
to diagnose them at source, we are able to see their resistance so that later on they cannot transmit these drug-resistant bacteria to others. And also at the hospital, we practice very stringent infection control measures, and this under the leadership of Dr. Devlina, who is our CEO, we have wonderful infection control and antimicrobial stewardship protocols in the hospital. And under the dynamic leadership of Mr. Kanwar, who is our, he is our founder of this hospital, the owner of this hospital. So we are doing great work. He's the chairperson and, he's the chairman of the hospital. And we are doing very good initiatives for infection control, for diagnosis, and for the CSIR activities, which is led by Madam Shalini Kanwar. So that's what we are doing here. Maybe request all the people who are standing in front of us. You've been the speakers. Why don't you join us, sir? All of you, ma'am. आप लोग आइए प्लीज द यूनियन टीम एंड सर प्लीज जॉइन अस काइंडली साहब एंड एवरीबॉडी इज टेकन अ प्लेज तो सब लोग एक प्लेज लेंगे मैम एनीबॉडी हु हैज गॉट अ गुड वॉइस टीबी हारेगा देश जीतेगा टीबी हारेगा टीबी हारेगा देश जीतेगा टीबी हारेगा देश जीतेगा टीबी हारेगा देश जीतेगा सो दिस इज इंडियाज नेक्स्ट लीप अभी ओलंपिक्स आने